بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الکریم اما بعد الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به صدق الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم محمد قاسمی صاحب، جناب محمد صدیقی صاحب اور میرے عزیز ساتھی دوست اور بزرگ، میرے یہاں بیٹھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں آپ لوگوں سے کچھ ذرا سا الگ، بلکہ مجھے بھی وہیں بیٹھنا چاہیے تھا. میں بھی ایک قرآن مجید کا ادنا طالب علم. البتہ یہ جو سوالات وغیرہ میں نے آپ سے کیے، میں چاہتا تھا کہ آپ لوگوں کو بھی اس کا ادراک ہو کہ ہم کو تلاوت کرتے وقت کن چیزوں کو منظور رکھنا چاہیے. جیسا محمد صاحب نے ایک حدیث کا مفہوم بیان کیا کہ جو آدمی اچھی تلاوت کرتا، الماہر بالقرآن، قرآن کا ماہر، وہ تو ہوگا مع السفرۃ الکرام البررہ، اللہ تعالیٰ کے مقربین بارگاہ بالکل قریب رہنے والے فرشتوں کے ساتھ. اس کا جو درجہ، جو مرتبہ، مقام جو ہوگا وہ. اب ہر آدمی تو ماہر بالقرآن ہونا ضروری نہیں ہے. تو اس کے بعد ایک شخص ایسا ہے جو تلاوت تو کرتا ہے اور اپنی تلاوت میں اٹک اٹک کے رک کے پڑھتا ہے، اور وہ اس پر شاق بھی ہے، بھاری بھی ہے اس کے اوپر وہ اٹک اٹک کے پڑھنا، وہ شاق علیہ، اس کے باوجود بھی پڑھتا ہے. تو ایسے شخص کے لیے لہو اجران، دوہرا اجر ہے ایسے شخص کے واسطے. اللہ تعالیٰ کی قدردانی کا ہم کیا اندازہ کر سکتے ہیں. پڑھنے والوں کو تو اللہ تعالیٰ نے اچھے مقام و مراتب عطا کیے، لیکن رک رک کے، اٹک اٹک کے، محنت سے، مشقت سے پڑھنے والے کی جو ہے نا، اللہ تعالیٰ نے ناقدری نہیں کی، اس کو ڈبل کر دیا، زیادہ انکریج کیا. تو یہ بات ہمارے لیے عین خوش آئند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری گئی گزری ٹوٹی ٹوٹی تلاوت کو بھی شرف قبولیت بخشا اور اس کے لیے بہترین اجر کا انتظام کیا. تو ہمیں مایوس بالکل نہیں ہونا ہے کہ ہماری تلاوت میں غلطیاں ہیں، ہم صحیح نہیں پڑھ سکتے. یہ چیز کو ذہن سے نکالنا ہے، لیکن اس کے لیے کوشش ضرور کرتے رہنا ہے کہ مجھے اپنی تلاوت صحیح طریقے سے کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے اس طرح فرمایا کہ الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے کتاب دی، یتلونہ حق تلاوتہ، وہ تلاوت کرتے ہیں ویسی جیسی کہ تلاوت کرنے کا حق ہے. تو حقیقت میں یہ وہ لوگ ہیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں. تو اب یہ ہمارے لیے ایک ایسی فکر انگیز بات ہے کہ ہم اس پہ غور کریں کہ ہماری تلاوت کی کیفیت کیا ہے. شروع میں ایک آیت محمد صاحب نے بھی پڑھی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے خلاف کبھی اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی مقدمہ پیش کر سکتے ہیں. کیا سوچتے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین، لیکن ہم اپنی امت کے خلاف ٹھہریں گے، ٹھہر سکتے ہیں. آپ نے آیت پڑھی تھی، قال الرسول یا ربی ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا. ہجرت کا لفظ لے رہے ہیں آپ لوگ. ہجرت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نقل مکان کرنا، چھوڑ دینا، چلے جانا. قرآن سے ہجرت کر کے یہ میری قوم، قرآن سے ہجرت کر لی، وہ تو قرآن کو چھوڑ کے دور چلے. کیا ہم اس کیٹیگری میں شامل ہونا چاہیں گے کہ رسول ہمارے خلاف اللہ کے سامنے یہ مقدمہ پیش کرے کہ میری قوم، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا؟ تو کتنی بڑی شدید وعید ہے. یہ ہمارے لیے ایک کوسچن مارک بن جاتا ہے کہ ہم غور کر کے دیکھیں کہ ہمارا اپنا ایٹیٹیوڈ قرآن مجید کے ساتھ کیا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کی جو آفرز ہیں ہمارے لیے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بیسٹ آف یو، سب سے بہترین
लोग वो हैं जो कुरान को सीखते और सिखाते। अब अल्लाह ताला के फजल करम से आज हम या सीखने वालों में या सिखाने वालों में, दो में से कोई एक है, तो बेहतरीन ग्रुप में आ गए अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर ये जो खुशखबरी आने के माहिर बिल कुरान जो माहिर है उसको क्या दिया जाएगा, जो अटक के पढ़ रहा उसको क्या दिया जाएगा। ये सब नेमतें होने के बावजूद भी अगर कोई शख्स इसको तर्क करता है तो फिर वो सोच लेना चाहिए कि अल्लाह के कि मेरी कौम जो है ना कुरान तर्क करके बैठ गई। तो ये जो तजवीद की सेशन हमने शुरू किया, आप लोगों ने माशाल्लाह अपना वक्त निकाला, कोशिश की इसको सीखने की। और सबसे ज़्यादा हमारे उस्ताद मोहतरम ने जिस तरह से उतनी दूर से यहाँ आकर और पूरी पाबंदी के साथ, वक्त की पाबंदी के साथ, बगैर किसी नारे के, हो सकता है आप लोगों ने कुछ क्लासेस नारा किए होंगे लेकिन उन्होंने एक क्लास भी नारा नहीं किया, तो इसका क्रेडिट तो उनको ज़्यादा जाता है। हमने तो एक कोशिश की और हमारी कोशिश तो ये थी कि हमारे ज़्यादा साथी इनसे इस्तेफादा कर सकते हैं, लेकिन बार अल्लाह ताला ने जिसको तौफीक दी है वो उन्हीं लोगों ने इसको कोशिश करके सीखा। तो इसको आखिरी मत समझिए आप लोग, ये मैंने आपको जो पढ़ा कर देखा है कुरान मजीद की अगर तजवीद किसी को समझना है, क्या मतलब है कि एसेस करना है, तो ताउज़ और तस्मिया औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये कोई दो ये पढ़ दिया ना, समझ में आ जाता है कि उसको कितनी तजवीद आती है, बस और कुछ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं, सब चीज़ें मालूम हो जाती कितनी तजवीद से वाकिफ़ है। तो मैं यही देखना चाह रहा था कि आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अंदाज़ा हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने मेहनत की है, सीखने की कोशिश की है, अपने आप को इम्प्रूव भी किया है, क्योंकि आप लोगों से मैं अक्सर सुनता रहता हूँ तो मुझे अंदाज़ा है कि किसकी तिलावत कैसी है और यहाँ आने के बाद उनमें क्या तब्दीली आई है। अल्हम्दुलिल्लाह तब्दीली आई है और मज़ीद ये कि उनको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। अलबत्ता बात चीज़ें जो है ना इंसान को माजूर कर देती हैं कि एक चीज़ आप नहीं कर सकते, उम्र हो गई, अब एक स्टेज पे ऐसे आ गए कि वो मखारिज वगैरह वो कोशिश के बावजूद भी आप लोग नहीं कर सकते, उसके लिए अल्लाह ताला से इस्तग़फ़ार करना चाहिए। अल्लाह मैं अपनी कोशिश तो पूरी कर रहा हूँ लेकिन फिर भी मैं बात हुरूफ की अदायगी नहीं कर सकता तो उसको माफ़ कर, ये हमारा अप्रोच कुरान में है। लेकिन कोशिश हमेशा जारी रखें और इस तरह की आप और कई क्लासेस अटेंड कर लीजिए, आपको फ़ायदा उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक कि आप मुतवातिर कुरान मजीद की तिलावत करते रहेंगे। अब कोई दूसरी चीज़ है ही नहीं, तरीक़े से क़वायद आपको बता दिए गए, इस्तेमाल आपको बता दिया गया, तरीक़ा आपको समझा दिया गया, अब प्रैक्टिस करना आपका काम है। उसके लिए आसान तरीक़ा यही है कि किसी अच्छे क़ारी को आप जिसको अच्छा समझते हैं उसकी कैसेट लीजिए, उसके साथ सुनते रहिए और वैसे ही वही टोन में पढ़ने की कोशिश कीजिए। जितना आप पढ़ते रहेंगे आवाज़ साफ होगी। बच्चों को देखो आप ज़ोर ज़ोर से पढ़ाते देखिए और साथ ताकि उनकी आवाज़ खुले और मखारिज साफ अदा। अब ये स्टेज पे आप ना तो सीख सकते हैं ना मखारिज निकाल सकते, लेकिन ये जितना भी आप निकाल सकते हैं उसकी कोशिश ज़रूर करना चाहिए। अक्सर साथियों के पास मैंने देखा कि बाज़ हरूफ हैं जिसको ज़रा सा मेहनत करके कोशिश करके निकालना पड़ता, वहाँ पे ज़रा गड़बड़ है, आइन और हा, ये दो अक्सर बेशतर के साथ ये मसला है। और वो क्या है कोशिश से आ सकते लेकिन अपना काम जितना कोशिश करना। मैं एक ऐसे शख्स से वाकिफ़ हूँ जो जिसको बिल्कुल भी नहीं आता था कुरान पढ़ना, लेकिन वो शख्स अटक के पूरे महफिल में बराबर पढ़ता था शौक़ से, और एक वक्त आया उसके बाद वो अच्छा पढ़ने लग गया और उसकी एज होना अबव 70। उस वक्त भी वो बंदा जो है ना इंतहाई शौक़ से सीखने की कोशिश ही करता, ये नहीं कि बहुत अच्छा सीख गया ऐसी बात नहीं, लेकिन ये बिल्कुल ज़बान पलटती नहीं थी। उस हद तक आके भी पूरे महफिल के सामने बैठ के पढ़ना यह खुद एक जो है ना उसके लिए एक एजाज़ है। लेकिन उससे कभी वो हिम्मत नहीं हारी, ना तो झिझक आई, ना शर्म आई। उन्होंने कहा कि कुरान सीखना है तो बस सीखना, चाहे कोई भी मेरे बारे में ख्याल करे। तो यही चीज़ हमें भी अपने तौर पर सोच कर समझना चाहिए। चाहे आप अपने बच्चे के सामने बैठ कर सीखें, कोई बात नहीं, अपनी अहलिया के सामने बैठ कर सीखें, कोई बात नहीं। सीखने में किसी तरह की चीज़ें शर्म माने होनी नहीं चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फज़ल करम से आप लोगों ने ये आज हमारा सेशन कंप्लीट किया। अब इसको रमज़ान करीब है, बल्कि अब रमज़ान आने तक भी आप इस सिलसिले को जारी रखिए। रोज़ाना अपने लिए आप कुछ न कुछ उस
उसका हिस्सा मुतय्यन कीजिए कि आप डेली बेसिस पे कितना कुरान पढ़ेंगे। कम से कम एक रुकू बेयर मिनिमम है बहुत, बट रेगुलर डेली, नो एक्सक्यूज़। अगर आप फजर के बाद मामूल बनाते हैं, किसी दिन नहीं पढ़ सकते तो आप ज़ोहर के बाद पढ़िए, नहीं तो असर के बाद पढ़िए, वो मामूल आपका मिस नहीं हो। और आहिस्ता आहिस्ता कंटेंट को बढ़ाते जाइए, एक रुकू से 2 रुकू, 2 रुकू से 3 रुकू से पौ पारा से आधा पारा, और ये तसलसल रखिए अलिफ लाम मीम से लेकर वन्नास तक आपको पढ़ना है सीक्वेंस में, कंटिन्यूटी के साथ। अब रमज़ान आ रहा, अभी से तय कर लीजिए, रमज़ान कम से कम एक कुरान पूरा मुकम्मल करेंगे। आप इरादा कीजिए, कोशिश कीजिए, हो सकता आप ना कर सकें, लेकिन आप आधा तो पढ़ लेंगे, कौन तो पढ़ लेंगे, 25 पारे तो पढ़ लेंगे, लेकिन आपने इरादा नहीं किया तो आप फिर नहीं पढ़ सकेंगे। तो इरादा कीजिए, कोशिश कीजिए, कल से शुरू कर दीजिए। रमज़ान का इंतज़ार मत कीजिए, रमज़ान आए तो शुरू करना है, शुरू कर दीजिए। उसके बाद दूसरे और जो लवाज़िमात है वो इंशाअल्लाह धीरे धीरे खुद ब खुद आपके साथ जो है आते रहेंगे। बाज़ लोगों ने जो है शिकायत की कि भाई 1-2 क्लासेस मिस हुए, मैं अटेंड नहीं कर सका। इसी वजह से हमने जो है ना रिकॉर्डिंग सिस्टम का हमने गुजारिश की थी कि भाई हमारी ये क्लास रिकॉर्ड हो जाए, तो जो साथी किसी वजह से अगर क्लास मिस हो गई तो वो रिकॉर्ड देख कर उन्होंने जो है ना वो क्लास और लेसन जो हो सुन जा सकते हैं। लेकिन ये कि मैं समझता हूँ कि शायद इसका पूरा एहतमाम नहीं कर सके। बहरहाल जो भी हुआ, जो होगा सो होगा, ख़त्म। अब क्या करना है, अब ये आप लोगों के ऊपर है। कुरान मजीद के ख़त्म पे एक दुआ थी, आप लोग सब लोग देखे होंगे, इख्तिताम पे दुआ ख़त्म कुरान में, वो दुआ को तर्जुमे के साथ पढ़िए आप लोग, और पढ़ के उसको समझिए। कितनी जामे तरीन दुआओं में से एक दुआ है। हम में से हर एक को खबर में जाना है। हम में से खबर से कौन कौन लोग मानूस हैं, जाने तैयार, या गए तो वहाँ पे वहशत में होना, उसके लिए कुछ कोशिश। वो दुआ शुरू ही होती है, अल्लाहुम्मा आनिस वहशती फ़ी क़ब्री, ऐ परवरदिगार मुझे खबर की वहशत से मानूस कर दे, मैं उसका यूज़ टू हो जाऊँ, मतलब है कि वहाँ जाने के बाद मेरे को वहशत ना हो, खबर में जाने के बाद। फिर उसके बाद अल्लाहुम्मा अर्हमनी बिल कुरान, कुरान के ज़रिए मुझ पर रहम फरमा, वजअलहु ली इमामन व नूरन व हुदन व रहमा, और मेरे लिए कुरान को नूर बना दे, हिदायत बना दे, और मेरा इमाम बना दे। फिर उसके बाद अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीत, जो कुछ मैं भूल गया हूँ उसको याद दिला दे। वअल्लिमनी मिन्हु मा जहल, और वो कुछ मुझे सिखला जो मैं नहीं जानता। वर्ज़ुक़नी तिलावतहु आना लैली व आना नहार, और मुझे सुबह और शाम पढ़ते रहने की मेरी आदत बना दी। और आना लेली व आना नहार वजअलहु ली हुज्जतन या रब्बल आलमीन, और ऐ परवरदिगार इस कुरान को मेरे हक़ में क़यामत में हुज्जत बना दे, ये मेरे फेवर में लड़ने वाला वकील बन जाए और मेरी मग़फ़िरत करा के छोड़े। कुरान इसका वकील बन जाएगा तो वो अल्लाह ताला से हदीस में आता कि ये झगड़ा करेगा और अपने पढ़ने वाले को और फ़िक्र करने वाले को, इसको साथ लेकर चलने वाले के हक़ में गवाही देगा, हुज्जत बन जाएगा, यहाँ तक कि अल्लाह ताला को राज़ी कर लेगा माफ़ी के। तो हम नहीं चाहते कि कुरान हमारे हक़ में गवाही दे। अब ये कुरान जो है ना, दो में से एक गवाही देने वाला है। अल कुरान हुज्जतुन लका औ अलैक, या तो आपके फेवर में देगा या आपके अगेंस्ट। कोर्ट में जाने के बाद वकील जरा करता तो या तो गवाह जो रहता या तो फेवर में देता या अगेंस्ट में देता। अब अगेंस्ट दिया तो क्या हो सकता, हम अंदाज़ा कर सकते उसका। तो इसीलिए ये दुआ हमेशा करते रहिए। आखिरी में लिखी हुई है, उसको याद कर लीजिए, अपनी खुसूसी दुआ में इस दुआ का एहतमाम कीजिए। वजअलहु ली हुज्जतन या रब्बल आलमीन, या वजअलहु लना, या मेरे लिए या हम सब के लिए, अपने इज्तिमाई तौर पर करेंगे तो जो है ना हम सब के हक़ में जो है ना इसको हमारा हुज्जत बना दे हमारे हक़ में। ये दुआ हमको करनी चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ करते रहिए कि अल्लाह ताला जो है ना
वो जो एक अरब दुआ आती है, अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिका। ये इतने जामे दुआएं हैं, हमको शायद उसका अंदाज़ा नहीं है, लेकिन ये कि दुआएं करते 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 भी जो है ना हमको कुछ ना कुछ इदराक हो जाता है पढ़ते पढ़ते। और जब आप गौर करके देखिए तो दुनिया सोरी, आप रात में उठ के 2 रकात पढ़ लेके 1-to-1 मामला है आपका अल्लाह ताला के साथ, और आपके दिल से जो याद आपके ज़हन में दुआएं हैं निकलते चली जा रही, अल्लाह ताला के सामने पेश हो रही, और आपकी आंसुओं से आंसू भी जा रहे हैं, आपका कुछ ना कुछ उसका असर। वो वक्त ऐसा है कि कोई उसमें देखने वाला नहीं है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, कोई इंटरफेरेंस नहीं है, ना किसी को दिखाने का मसला है, ना कोई रियाकारी का शायबा है, कुछ भी नहीं है। उस वक्त में अल्लाह ताला से दुआ करेंगे तो इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह क्या पता कि अल्लाह ताला दुआ को कबूल कर ले। आप हमारे हाथ में जो है ना ये चीज़ है, इसकी हम सबको कोशिश करनी चाहिए, अल्लाह ताला से दुआ करना चाहिए। जो उसमें कामयाब हो गया वो हकीकत में कामयाब है, वरना दुनिया में अच्छी से अच्छी भी ज़िंदगी गुजार रहे कि वहाँ जाकर अगर कहीं रुकावट आ गई, अल्लाह ताला हमसे कोई सवाल कर लिया जिसका जवाब हम नहीं दे पाए तो अल्लाह ही माफ़ करने वाला है, बस उसी से हमको माफ़ी तलब करनी चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अल्लाह ताला का बेइंतहा शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें इस बात की तौफ़ीक़ दी कि हम कुरान मजीद को, उसके कलाम को सीखने के लिए यहाँ पर जमा हैं, और हम उस्ताद मोहतरम के भी इंतहाई शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने अपना वक्त निकाल कर आप लोगों को अपनी पूरी महारत के साथ सिखाने की पूरी कोशिश की, उसमें उन्होंने कोई कोताही नहीं की अल्हम्दुलिल्लाह, और उसके बदले में उन्होंने कोई मुआवजा आपसे तलब नहीं किया। उन्होंने सिर्फ जो है अपना अजर इन अजरिया इल्ला अल्लाह, अल्लाह ही से उन्होंने अपनी उम्मीद रखी है कि इसका अजर तो अल्लाह ही देगा, तो उनकी भी हमें कदर करनी चाहिए, और हम उसके लिए शुक्रगुजार भी हैं। न सिर्फ एक शुक्रगुजार है, उनके हक़ में दुआ को है कि अल्लाह ताला ने उसका बेहतरीन अजर अता फरमाए, और जो कुछ भी हमने इसमें कोशिश की है अल्लाह ताला हमारी इस कोशिश को अपने फजल और करम से कबूल फरमाए, हमारी कोताहियों को माफ़ फरमाए, और हमें कुरान मजीद से, कुरान मजीद का दोस्त बनाते हैं कि हम उसके बग़ैर अपने आप को जो है ना नामुकम्मल महसूस करें। अगर किसी दिन हमारी तिलावत रह गई हो तो हमारे अंदर एक बेचैनी सी महसूस करनी चाहिए, ये हमारी कोशिश करनी चाहिए। आगे अल्लाह ताला हिदायत देने वाला है। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात।